Hello students. So today we will start with the next chapter, chapter number 2, that is sexual reproduction in flowering plants. So we started in chapter number 1, reproduction in organism, that there are two kind of reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction. We studied that in asexual reproduction fusion of gametes does not take place, whereas in sexual reproduction fertilization of gametes take place. So today we will study the sexual reproduction in the flowering plants. So we know that what is flower. Flower is the reproductive part of the plant. You must have studied about it in smaller classes, that it is the reproductive part of plant. Now there are four whorls in flower: calyx, corolla, endoecium and gynoecium. So calyx and corolla are the accessory whorls, and endoecium and gynoecium are the main whorls which will be involved in the reproduction. So here is a diagram of the flower. So what is calyx? The outermost green color petal is known as calyx. Okay, so here this is calyx. Calyx is also known as sepal. Now the colored bract is known as corolla. Okay, now inside it there is endoecium, which is the male reproductive part. So this endoecium is divided into anther and it is having a long stalk which is known as filament. Now then there is the central gynoecium. It is divided into stigma, long style and basal swollen ovary. Okay, so ovary is the main reproductive structure. Now we started that pre-fertilization, fertilization and post-fertilization events are there. So in the pre-fertilization event, production of gamete will be taking place. Okay, so we will study about microsporogenesis in the endoecium, megasporogenesis in the ovary. Microsporogenesis will result in the formation of microspore or pollen grain. So first we will study the part of typical stamen. Okay, so stamen has anther and it has a long stalk which is known as filament. Okay, now this anther is typically bilobed. As you can observe over here that two lobes are present. Now inside these two lobes you can observe that two thecas are there. These are the two lobes, and in these lobes two theca are there. So this is bilobed condition and dithecous condition. Two lobes are there. This is lobe number 1, lobe number 2, lobe number 1, lobe number 2, and inside this lobe these are the two thecas. Okay, so this is known as bilobe dithecous condition. Now there is often a longitudinal groove which runs lengthwise, and this is known as line of dehiscence. So when it bursts, pollen grains are dehisced throughout this line. Now this anther consists of 4 microsporangia located at each corner. So these are the 4 microsporangia which are located at each corner. Now the microsporangia give rise to pollen sacs. Okay, so what is the structure of the microsporangium? So this microsporangium has 4 layers: outermost epidermis, endothecium, middle layer and tapetum. So these 3 layers helps in protection, provide protection, and the innermost layer tapetum helps in nutrition. Okay, so these are the 4 wall layers of microsporangium. Okay, now within this microsporangium sporogenous tissue are there. Certain cells are there which are known as sporogenous tissue. Now each of these cells are capable are the potential pollen mother cell, that is they can give rise to the pollen grains. Now we have studied that meiocyte will divide by the process of meiosis and give rise to gamete. So if this is the potential pollen mother cell, okay, so this pollen mother cell will undergo meiosis and it will give rise to 4 microspore or pollen grain. Right, this is diploid and this is
haploid. This is the basic concepts which we have started in the previous chapter, reproduction and organism. If you have not attended that class, then you can go and attend those class. So microsporogenous क्या होता है? The cells of the sporogenous tissue undergo meiotic division to form microspore tetrads. Tetrads का मतलब 4 cells होंगे. ना अब हम देखते हैं जो हमने चारों लेयर्स पढ़ी माइक्रोस्पोरेंजियम के अराउंड, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेपिटम, वो किस तरीके से दिखती है. तो ये हमारे पास में क्या है, डायग्राम दे रखा है माइक्रोस्पोरेंजियम का. क्या गिवन है यहाँ पे? ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ प्राइमरी एंथर. ठीक है, एंथर जो है इसका ट्रांसफर सेक्शन है यंग एंथर का. तो इसके अंदर क्या दिख रहा है? ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये एपिडर्मिस है, इसके अंदर एंडोथीशियम है, ये आ गई मिडिल लेयर, ये आ गई टेपिटम, और ये अंदर सेंट्रल क्या है? स्पोरोजेनस टिश्यू है. जो स्पोरोजेनस टिश्यू है उनके अंदर पोटेंशियल है कि वो पोलन मदर सेल की तरह एक्ट कर सकते हैं. तो वो पोलन मदर सेल की तरह एक्ट करके पोलन ग्रेन फॉर्म करेंगे. ठीक है, ये है हमारे पास में एपिडर्मिस. देन आ गया हमारे पास में एंडोथीशियम लेयर, ये आ गई मिडल लेयर. देन ये वाली जो लेयर आ गई टेपिटम आई, ये आ गई हमारे पास में माइक्रोस्पोर मदर सेल. एक माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगा, हमें 4 पोलन ग्रेन्स मिल जाएंगे. अब ये यहाँ पे हम बता रखा है किस तरीके से डेहिसेंस होता है. ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस हुआ, 4 पोलन ग्रेन्स बन गए हैं. ठीक है, हर माइक्रोस्पोर मदर सेल से ऐसे बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड होगी, पोलन ग्रेन्स फॉर्म करेगी. अभी सारे पोलन ग्रेन्स फॉर्म हो गए हैं, तो अब यहाँ पे क्या होगा? ये बर्स्ट होगा, इसकी लाइनिंग ब्रेक होगी, एंड देन यहाँ से क्या होंगे? पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे. तो अब मच्योर डेहिस्ड एंथर, ये वाला था यंग एंथर, ये है मच्योर एंथर जिसके अंदर डेहिसेंस प्रोसेस हो रहा है. सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर क्या होगा? ये जो पोलन मदर सेल है इसके अंदर मियोसिस होगा, 4 माइक्रोस्पोर फॉर्म होंगे. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. अभी जो पोलन ग्रेन होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल गेमिटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है. सो मेल गेमिटोफाइट जो होता है वो किससे रिप्रेजेंट होता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पोलन ग्रेन. ठीक है, अब ये जो पोलन ग्रेन होता है इसके अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन के अराउंड लेयर्स प्रेजेंट होगी. जो आउटर लेयर होगी वो किसकी बनी हुई होगी? outer layer will be made up of sporopolanin. और इनर लेयर किसकी बनी हुई होगी? पैक्टोसेलुलोज की बनी हुई होगी. अब ये जो स्पोरोपोलानिन होता है इसको ना तो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय कर पाता है, ना एंजाइम डिस्ट्रॉय कर पाते हैं. तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल होता है. इस स्पोरोपोलानिन के कारण ही जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो फॉसिल की तरह प्रिजर्व रह पाते हैं. ठीक है, तो हमें याद रखना है आउटर लेयर किसकी बनी हुई है? स्पोरोपोलानिन की बनी हुई है. इनर लेयर पैक्टोसेलुलोज. पैक्टोसेलुलोज का मतलब हो गया पेक्टिन और सेलुलोज से मिलके बनी हुई होती है. ठीक है, ये जो आउटर लेयर होगी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी क्योंकि ये रेसिस्टेंट होगी हाई टेम्परेचर को. एंजाइम्स इसको डिग्रेड नहीं कर पाएंगे. ठीक है, विथस्टैंड कर लेगी एंजाइमेटिक एक्शन को भी. अब इसमें एक चीज आती है कि ये जो आउटर लेयर है स्पोरोपोलानिन, यहाँ पे एक जगह होगी जिसको हम जर्म पोर कहेंगे. ये जर्म पोर पे क्या होगा? स्पोरोपोलानिन प्रेजेंट नहीं होता है. जर्म पोर वो प्लेस है जहाँ पे आउटर लेयर के अंदर स्पोरोपोलानिन नहीं प्रेजेंट होगा. तो इस वजह से यहाँ से पोलन ट्यूब ग्रो करके आ जाएगी. अदरवाइज पोलन ट्यूब बाहर ग्रो करके कैसे आती? जब स्पोरोपोलानिन तो हार्डेस्ट मटेरियल है, इसको टेम्परेचर नहीं डिस्ट्रॉय कर पा रहा है, इसको एंजाइम डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा है, तो हमारी पोलन ट्यूब कैसे ग्रो करेगी? ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एक अपर्चर प्रेजेंट होता है जर्म पोर. जर्म पोर वो है प्लेस आउटर लेयर के अंदर जहाँ पे स्पोरोपोलानिन प्रेजेंट नहीं होगा. Okay, so if they ask you question that what makes pollen grain resistant
थ्रू दी डिग्रेडेशन, और पोलन ग्रेन्स प्रिजर्व क्यों हो सकते हैं फॉसिल फ्यूल से, स्पोरोपोलानिन का फंक्शन क्या होता है। तो आप क्या बताओगे, स्पोरोपोलानिन किस तरीके से हेल्प करता है। तो स्पोरोपोलानिन सर्वाइवल में कैसे हेल्प करता है, हार्डेस्ट मटेरियल स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल कैसे है, बिकॉज इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, resistant to action by acid and alkali, ना तो एसिड ना एल्कली को इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, एंड नो एंजाइम कैन डिग्रेड इट। That's why pollen grains are preserved as fossils. ठीक है, तो जो आउटर लेयर होगी इसको हम कहेंगे एक्साइन, इनर लेयर होगी एंटाइन। एक्साइन लेयर स्पोरोपोलानिन की बनी हुई होगी, एंटाइन लेयर पिक्टोसेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, अभी जो एक सिंगल पोलन ग्रेन होता है इसके अंदर क्या होता है, 2 सेल होंगे हमारे पास में। पहली जो लार्ज सेल है इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल, ये जो स्मॉल सेल है इसको हम कहेंगे जेनरेटिव सेल। ये जो वेजिटेटिव सेल होती है इसके अंदर क्या होता है, अबंडेंट फूड रिजर्व प्रेजेंट होता है। ठीक है, वेजिटेटिव सेल में क्या होगा, लार्ज साइज की है, अबंडेंट फूड रिजर्व प्रेजेंट होता है, जबकि यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल अमाउंट के अंदर होगा साइटोप्लाज्म जो है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट के अंदर होगा साइटोप्लाज्म। और कैसी है, न्यूक्लियस कैसा है, यहाँ पे इरेगुलर शेप का है, यहाँ पे स्पेंडल शेप का होता है। तो ये सेल को हम कहते हैं, इस स्टेज पे अगर पोलन ग्रेन शेड होता है तो इसको हम कहते हैं 2 सेल्ड स्टेज, क्योंकि इसके अंदर 2 सेल हैं। पहला है वेजिटेटिव सेल, दूसरा है जेनरेटिव सेल। अब अगर ये जेनरेटिव सेल जो है ये डिवाइड हो जाता है और 2 मेल गेमीट फॉर्म कर देता है, तो हमारा पोलन ग्रेन जब शेड होता है उस स्टेज को हम 3 सेल स्टेज कहेंगे। अब यहाँ पे क्या है, 2 मेल गेमीट अगर बन गए हैं, ये आपकी क्या है, वेजिटेटिव सेल है, तो इस सेल स्टेज को हम कहेंगे 3 सेल्ड स्टेज। और पोलन ग्रेन जो है डिपेंड करता है 2 सेल्ड स्टेज पे शेड होता है या 3 सेल्ड स्टेज पे होता है, अलग अलग प्लांट्स के अंदर अलग होता है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हमारे पास में आती है, आप में से कोई होंगे ऐसे जिनको एलर्जिक प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये क्या कॉज कर सकते हैं, ऐसे लोग जो सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या करते हैं, एलर्जी कॉज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास में आता है कैरेट ग्रास, जिसको हम क्या कहते हैं, पार्थीनियम कहते हैं। ठीक है, तो ये पार्थीनियम क्या हो गया था, जो हमने वीट इंपोर्ट करी थी बाहर से, उसके साथ में कंटामिनेंट की तरह आ गया था, बट ये भी क्या कॉज करता है, ये पोलन एलर्जी कॉज करता है। ठीक है, जब सीजनल चेंजेस होते हैं ना, तो जिन लोगों को ब्रोंकाइटिस होगा, अस्थमा होगा या राइनाइटिस होगा, साइनसाइटिस होता है, तो उनको एलर्जिक प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर ये पोलन ग्रेन्स वगैरह प्रेजेंट होंगे, तो वो पोलन एलर्जी जिन लोग को होती है उन लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ना नेक्स्ट टॉपिक, सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी अबाउट पोलन सप्लीमेंट्स। ठीक है, अब ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, कुछ पोलन प्रोडक्ट्स हैं, ये बी पोलन है फ्रॉम इंग्लैंड। तो क्या होता है, ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स के अंदर बहुत रिच होते हैं, तो रिसेंटली इनको फूड सप्लीमेंट्स की तरह यूज़ किया जाने लगा है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, तो वेस्टर्न कंट्रीज वगैरह में तो इनकी टैबलेट्स वगैरह मिलने लग गई है। ये दिख रहा है ना, फ्रॉम इंग्लैंड से आया है, तो टैबलेट्स की फॉर्म में, ये सिरप की फॉर्म में ये लोग इसको इनटेक करते हैं। जो एथलीट्स होते हैं, रेस हॉर्सेस हैं, उनको दिया जाता है, क्योंकि इससे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज वायबिलिटी। ठीक है, वायबिलिटी क्या होता है कि कितने टाइम तक वो अपनी जर्मिनेट होने की कैपेसिटी को रिटेन कर पाता है। तो ये जो कैपेसिटी होती है जर्मिनेट होने की, उसको हम वायबिलिटी कहते हैं। कि एक पोलन ग्रेन है वो क्या कॉज कर सकता है, फर्टिलाइजेशन कॉज कर सकता है, कितने टाइम तक, सो दैट विल बी नोन एज वायबिलिटी। ठीक है, सो वायबिलिटी इज द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन्स रिमेन वायबल
ठीक है, वायबल का मतलब हो गया कि कब तक वो जर्मिनेशन कॉज कर सकता है। कि अगर उस पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड हो गया तो क्या वो जो पॉलिनेशन है, जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, वो कॉज कर सकता है। तो ये वेरी करता है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है राइस है, वीट है, इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो 30 मिनट्स के अंदर अपनी वायबिलिटी लूज कर देते हैं। दैट मीन्स 30 मिनट बाद में वो फर्टिलाइजेशन कॉज नहीं कर सकता है। रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलोनेसी है, ये मंथ्स तक अपनी वायबिलिटी क्या करते हैं, रिटेन करते हैं। ठीक है, अब पोलन बैंक्स होते हैं। पोलन बैंक्स में क्या कर सकते हैं हम, पोलन ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं 196 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बहुत सारे ईयर्स तक। अगर ऐसा है कि ये प्लांट अब एक्सटेंट हो सकता है, ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीशीज है, कभी भी एक्सटेंट हो सकती है, तो हम उनके पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व करके रख सकते हैं पोलन बैंक्स के अंदर। एग्स को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं एग बैंक्स के अंदर, ताकि फ्यूचर के अंदर अगर वो प्लांट जो है नेचर के अंदर एक्सटेंट हो जाए, ठीक है, तो हम उसको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करा के उस प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो देयर आर पोलन बैंक्स जहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है बहुत सालों तक। So such stored pollen grains can be used as pollen banks similar to seed banks in crop breeding program. क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंदर, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, हमें जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स चाहिए उसको हम आर्टिफिशियली ओवा एंड स्पर्म को फ्यूज कराएंगे ताकि हमें डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक वाला प्लांट जो है, क्रॉप है, वो मिल सके। तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि आप पोलन ग्रेन्स को स्टोर कर दें लिक्विड नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ठीक है, सो वील स्टडी अबाउट मेगास्पोरेंजियम इन आवर नेक्स्ट क्लास. I hope this lecture was helpful to you. Don't forget to leave your comments and subscribe to my channel. Thank you.